श्री गोकुल नाथ की આ એની છૂટ આપણા ઘરથી અમે આપી છે। જ્યાં નિયમ બધા પાડવામાં આવતા હોય ત્યાં મર્યાદા રહી ગઈ। મારી વાત આખી સમજી લો, કેમ કે આમાં છે આ સેવાનો વિષય છે અને તેથી એ દરેકનું વ્યક્તિગત વિષય છે। છતાંય જ્યારે હું આ સામૂહિક રૂપે જે વાત કરી રહ્યો છું એમાં સ્પષ્ટીકરણની જરૂરિયાત છે। મેં આજકાલ ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણા બધા લોકોને, આપણા ઘરના જે લોકો છે જે આ રીતે મને પ્રશ્ન કરે છે કે અમે લોકો સેવા કરી શકીએ કે નહીં ઘરમાં, હું છૂટ આપું છું કે હા કરી શકો। શા માટે? એક તો પહેલા કે એ સેવા છે કે નહીં, જ્યાં થતી હોય તે સેવા છે કે નહીં એ પહેલા સમજવી જોઈએ। કેમ કે લગભગ હવે 99% લોકો જે પૂજા પાઠ જેવું જે ક્રમ હોય, જે શરણ માર્ગીય નામ સ્મરણનું જે પ્રકાર હોય એને પણ સેવા જ સમજે છે। એટલે સેવાની પરિભાષા કે ખરેખર સેવા કોને કહેવાય એ સમજ્યા વગર જ્યાં ફક્ત પૂજા પાઠ થતા હોય કે નિત્ય નિયમની આપણે જે સ્તોત્ર વગેરે કરતા હોઈએ, જ્યાં દૂધઘર મિશ્રિત ભોગ રાખવા, એ પણ એ નામ સ્મરણના પ્રકારને પણ લોકો સેવા જ સમજે છે અને સેવા રૂપે જ કહે છે અને વ્યવહારમાં પણ કે આજે અમે સેવા કરીએ છીએ। સેવામાં શું કરી રહ્યા છો કે અમે દરરોજનું નિત્ય નિયમ પાઠ કરીએ અને મિશ્રિત ભોગ રાખીએ છીએ, પણ એ નામ સ્મરણનો પ્રકાર છે, એ સેવા નથી। બે સંજ્ઞાઓ જુદી જુદી સ્પષ્ટ રીતે સમજવી જોઈએ। એક નામ સ્મરણ અને બીજું સ્વરૂપ સેવા। ભક્તિ માર્ગીય જે સેવા પ્રણાલી છે જેમાં બ્રહ્મ સંબંધ લઈને આપણે કૃષ્ણ સેવામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એને સ્વરૂપ સેવા કહેવામાં આવે છે। અને શરણ માર્ગીય દીક્ષા ગ્રહણ કરી એટલે કે નામ લઈ, કંઠી લઈ અને જે આપણે સાધના પ્રણાલીનું આચરણ કરી છે એને નામ સ્મરણ કહેવાય છે। આ બે જુદી જુદી વસ્તુઓ છે, નામ સ્મરણ અને સ્વરૂપ સેવા। સ્વરૂપ સેવામાં જે રીતે આખો ક્રમ છે, જે મેં લાઈફસ્ટાઈલની વાત કરી, આખી જીવન સંપૂર્ણ સમર્પિત જીવન પ્રણાલી, એમાં એ પ્રકારને સમજીને એ જે આપણે સવારથી લઈને જે 2 કે 3 કલાક જે આપણે કરીએ છીએ મંગળ ભોગ ઠાકોરજી બેગાડીને જે આપણે ઘરે સામગ્રી કરતા હોઈએ, બધું ધરીને અને જે લેતા હોઈએ એ બધું પ્રકાર એમાં કહેવાય છે। આ પ્રકારમાં કોઈ પણ દૂધઘર કે મિશ્રી કે એવું કાંઈ પ્રકાર કરવાની જરૂરિયાત નથી। એટલે ત્યાં આવા પ્રકારમાં હું છૂટ આપું છું કે હા તમે કરી શકો છો, પણ ખરેખર જો જ્યાં વ્યવસ્થિત પ્રકાર ચાલતું હોય ત્યાં કંઠી લેનાર વ્યક્તિ ઠાકોરજીનો ચરણ સ્પર્શ અને ઝારીજી આ બે ના કરી શકે, તે સિવાય બહારની ટેલ કરી શકે છે। આવ્યું ખ્યાલ? ઠાકોરજીનો સ્પર્શ અને ઝારીજી આ બે વસ્તુ ના થાય એનાથી, બાકી બહારની સામગ્રી વગેરે બીજી બધી ટેલ છે એ બધી ટેલ કરી શકે। ઠાકોરજીનો સ્પર્શ એનાથી ના થાય જ્યાં સુધી બ્રહ્મ સંબંધ લીધા ના હોય ત્યાં સુધી। એટલે આ વસ્તુ સ્પષ્ટ સમજી લેવી જોઈએ। જ્યાં દૂધઘર કે મિશ્રિત ભોગ જેવા પ્રકાર ચાલે છે ત્યાં બધું જ થાય, ત્યાં એમાં કોઈ જાતનો વાંધો નથી। નામ સ્મરણમાં કાંઈ નહીં, ઝારી નહીં, મિશ્રી નહીં, કાંઈ નહીં, બિલકુલ ખાલી સ્વરૂપને 4 છૂટા પુષ્પ લાવી એમના ચરણારવિંદમાં મૂકી, જો શક્ય હોય તો એક પુષ્પની માળા કરી ધરાવી અને જે નિત્ય નિયમના પાઠ છે એ નિત્ય નિયમના પાઠ આપણે સન્મુખ બેસીને કરી લેવા। તે સિવાય શરણ માર્ગનો બીજો કોઈ પણ પ્રકાર નથી, નથી ને નથી। એમાં એક કણીકો મિશ્રી કે ઝારી ભરવાની પણ અનિવાર્યતા નથી અને ન કરવું જોઈએ। એ પ્રકાર બિલકુલ શુદ્ધ જ રાખવું જોઈએ કે નહીં, નામ સ્મરણ એટલે નામ સ્મરણ, એમાં બીજો કોઈ પ્રકાર ઉમેરવો ના જોઈએ। હવે આ નિયમો આવ્યા તો નિયમો આપણા ઘરમાં બધા ના પાડતા હોય ને આપણે એકલા જ કદાચ પાડીએ તો એ પછી પોસિબલ છે? એ નિયમ શ્રી મહાપ્રભુના બનાવેલા છે, મારા કે તમારા બનાવેલા નથી। એટલે હું પણ નિયમમાં બંધાયેલો છું, તમે પણ નિયમમાં બંધાયેલો છે। એટલે એમાં કઈ આપણે બાંધછોડ કરીને આપણો મનસ્વી પ્રકાર આપણે ચલાવતા માંગતા હોઈએ તો આવી પરિસ્થિતિ થાય। હા, નિયમ અને અપવાદ એ શાસ્ત્રની ગતિ હોય છે। શાસ્ત્રની ગતિમાં જ્યાં નિયમ હોય તો સાથે અપવાદ પણ હોય છે।
શાસ્ત્ર નિયમ અને અપવાદ બંને સાથે ચાલે, પણ એ કેવા છે कि वो रेल के तो पटरी हो है उनकी तरह हो, दोनों साथ में चलेंगे, मिलेंगी नहीं कभी भी। तो जहाँ नियम होएगा वहाँ अपवाद होएगा ही, और जहाँ अपवाद है वहाँ नियम होएगी नहीं। तो ये नियम है। नियम ये है करके अपवाद आए। जैसे वार्तान के अपन प्रमाण देखेंगे, श्री महाप्रभु में जो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता को अवलोकन करेंगे तो वहां में बहुधा जितने भी हैं वो सब अपवाद के रूप में वो व्यवस्था मिलेगी कि भाई ये वैष्णव फलाने फलाने इनको आज्ञा दे रही उनने, तो वो आज्ञा दे रही, हाँ वो दे रही, वहां पे दे रही, पर आज अगर कोई ऐसी आज्ञा मांगना चाहे तो वो अलाउड नहीं है। क्यों? वो नियम, वो अपवाद हते, अपन सब नियम में आ गए। और अगर नियम बनाए हैं तो ऐसा नहीं है कि अपवाद नहीं है, अपवाद जरूर होंगे। और अपवाद ही अपवाद होगा तो हर व्यक्ति ऐसी अपेक्षा रखेगा कि भाई मुझको भी अपवाद में ले लो, मारा માટે પણ છૂટ મળવી જ જોઈએ, પણ એ છૂટ દરેકને અપાય નહીં, એટલા માટે એ નિયમ કરવા જરૂરી છે। આપણે તો કરીએ નિયમ, પણ હવે છોકરાઓ કહે કે ના તારે તારું કરવા, તો શું કરો? तो करो, अपनो करना चाहिए। हमें ऐसा कोई ऐसी तो कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती तो है नहीं। पुष्टि मार्ग को आचरण हम ये क्यों ये मान करके चल रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में अगर अपने घर में अगर 4 लोग हैं या 6 लोग हैं या 10 लोग हैं तो दसन को जो है वो पुष्टि मार्ग ये स्वभाव अधिकार वाले हो, ये क्यों अनिवार्यता है? ऐसी अपन को ऐसी चढ़ाग्रह या हठाग्रह अपन को रखना भी नहीं चाहिए। हाँ, निश्चित करना चाहिए। कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती करके क्या फायदा? ये तो अपन को नहीं सिखाया कि भाई तुम डंडा मार करके कोई को जबरदस्ती बैठाओ। और जब उम्र जो हो है, जहाँ उम्र में अपन वो जोर जबरदस्ती करनी चाहिए वहाँ टाइम पे अपन करे नहीं है। जब समय निकल जाए, उम्र निकल जाए और जब बालक को अपनी खुद की सोच डेवलप हो जाए तब वो कौन सा जो है वो ठाकुर जी के सामने आकर के वो बैठ करके 10 मिनट पाठ करेगा, क्योंकि वहां समय तक जब तक बाबू समझ आ जाए तब तक तो अभी प्रायोरिटीज चेंज हो जा रही है। तो संस्कार देने के समय जो है जहाँ समय पे जब देना चाहिए तब अपन दे नहीं है। या ये बेहतर रास्ता ये है कि या को कोई इश्यू घर में नहीं बनाना चाहिए, संस्कार देने के प्रयास करने चाहिए, और बाकी कोई के ऊपर ये बंधन नहीं है। आज मेरे घर परिवार में अगर 6 सदस्य हैं तो ये कौन ने कह दी कि 6 और 6 पुष्टि मार्ग की स्वभाव अधिकार वाले हों? नहीं है, जरूरी नहीं है। और ये चीज अपन नहीं समझे और सब पे अपन इम्पोजिंग कर दें, वो रूल बना दें करके वो दूर हो जाए अपने यहाँ से, ये तकलीफ है। पर ये तकलीफ मान करके अपन सामने से इजी गोइंग कर लें। देखो ये पुस्तक जो है ना, ये आज जो मिलेगी यहाँ में यही चीज समझाई हुई है। सेवा करनी है, आपको जरूरत है, या लिए महाप्रभु को जरूरत नहीं है कि तुम ये सब चीज फॉलो करो, या लिए ये करके महाप्रभु पे कोई ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं या पुष्टि मार्ग पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर घर वाले बालक हैं या युवा वर्ग या अपने जो भी घर में जो या चीज को नहीं कर रहे हैं और वो ये समझते हो कि भाई हम अगर कर भी रहे हैं तो हमने कोई के ऊपर उपकार कर दियो, ये भ्रांति में से वो लोग निकल जाएं। ये स्पष्ट है, सेवा करनी अपनी रिक्वायरमेंट है। सेवा करनी या अपन को आत्मकल्याण कर साधनों हो गए, वो आत्मकल्याण अपनो अपन चाह रहे हैं, अपन की रिक्वायरमेंट है करके अपन करना चाह रहे हैं। श्री महाप्रभु अपन से अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, उन्होंने तो ये कर्तव्य बता दिया कि जीव को ये कर्तव्य है, चेतस तत्प्रणम सेवा, कृष्ण सेवा सदा कार्य, ये उपदेश दे दिए। ये तो अगर अपन को इच्छा हो रही है, अपन चाह रहे हैं कि नहीं मुझको अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो ये अपनी लायबिलिटी बन रही है। और अगर ये सोचते हो कि कोई के ऊपर उपकार कर दियो अपने धर्माचरण करने को, तो वो तो सबसे बड़ी अपनी बेवकूफी है। ऐसे बेवकूफन को कर दो क्या, उनके साथ बात नहीं करनी, वही ठीक है कि भाई ठीक है, जब तुम जा चीज को, जा व्यवस्था को या जा विषय को तुम समझ ही नहीं रहे हो तो पत्थर के साथ मूड क्या मारेंगे तुम? तुम्हारे जीवन, तुम्हारे कर्म में पत्थरा पड़े, तुमको समझ रहे हो, तुम समझो, नहीं समझ लो तुम्हारी मर्जी, कोई को जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं अपन ये। तो सेवा या कथा या ये जो कुछ भी है, आत्मोन्नति करना नहीं करना, ये हर एक को व्यक्तिगत विषय है। अगर अपन को करनी है तो अपन काय कोई अपेक्षा रख रहे हैं कि भाई यार घर परिवार वाले सबके सब वहां में जुड़ के हम जो जितनी जात तरीका से हम कर रहे हैं वहां में वो लोग करें, वो तो संभव ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोगों को, ऐसे चर्चणी लोग या अधार्मिक लोगों को कब जो है उनको करके क्या करोगे क्या?
वहाँ कोई रास्ता नहीं है। सॉल्यूशन कहाँ है वहाँ बताओ। ये कोई था एक मिनट, अगर आपके पास कोई बात है तो जवाब दो उनको, और या फिर मेरी बात को सीधी तरह से समझ लो। या तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये अपनी लौकिक समस्या है, ये धर्म की समस्या नहीं है। ये जो आप प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न लगभग यहाँ पे 90% लोगों के प्रश्न हैं, बोलेंगे नहीं, और सब लोगों के घर की कहानी है। पर या तो सॉल्यूशन ये क्यों सॉल्यूशन नहीं है, समझो या बात को। ये सॉल्यूशन या लिए नहीं है क्योंकि ये सॉल्यूशन धार्मिक नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम धार्मिक नहीं है। अगर वास्तविक समस्या हो ना, तो हर समस्या को हल वही में अंतर्निहित है। थोड़ा शांत चित्त होकर के और फिर वो क्या वो समाधान है वो सोचना चाहिए। पर ये प्रश्न अपने आप में धर्म से को कोई लेन देन नहीं है। ये अपनी व्यक्तिगत लौकिक सांसारिक समस्या है कि मैं कर रही हूं या मैं कर रहे हूं, पर वो नहीं कर रहे हो करके वो तकलीफ अपन को हो रही है। ये अपनी प्रॉब्लम है। ये या तो सोल्यूशन कोई धार्मिक रूप से नहीं मिले कोई। ये अपन को जैसे श्री महाप्रभु ने बताया ना वहां पे आद्यो बुद्धिया त्याज्य, तो सेवा के 3 प्रतिबंध बताए। तो वहां में से जो प्रथम प्रतिबंध है वहां को निराकरण कैसे करना कि 2 प्रतिबंध जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक जीवकृत और एक भगवतकृत। तो जो जीवकृत हैं उनके लिए कह रहे हैं भगवतकृत अगर प्रतिबंध है तो वहां तो अपने पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवत इच्छा से सब कुछ घटित। तो भगवान की या प्रकार की कुछ इच्छा है करके वहां में तो सिवाय के अपन की शरण भावना अपनो आश्रय जो है दृढ़ ये लेकिन प्रकार बचाए रखो, क्योंकि स्वयं भगवत इच्छा है तो वहां में तो कुछ किया ही नहीं जा सके। भगवत प्रतिबंध हो तो अब रहे हो यदि जीवकृत प्रतिबंध है तो वहां के लिए कह रहे हैं कि आद्यो ये पहलू से એટલે जीवकृत प्रतिबंध ते बुद्धिया त्याज्य करके वाको बुद्धि सु वाको निवारण करो। जो प्रतिबंध आयो है वाको बुद्धि पूर्वक वाको हल ले आओ, वाको सॉल्यूशन ले आओ। और मेरे ख्याल से ये जो समस्या है ना अपनी, ये लौकिक होने के कारण या जीवकृत होने के कारण आद्यो बुद्धिया त्याज्य, या को अपने बुद्धिपूर्वक विवेक सु या को निराकरण या को सॉल्यूशन ले आना चाहिए। या के अलावा कोई वो सॉल्यूशन अपने ग्रंथन में या को नहीं है ये चीज को, क्योंकि वो वाली बात प्रकार की है, ये प्रॉब्लम ही नहीं आयो ख्याल में। यानी बेस्ट है वो सही टाइम कोई तो समस्या है ना, वही तो अरे वो सही समय पे हर चीज हो जाती या हर चीज ध्यान में आ जाती तो अपन सब लोग कर जाते हैं। तो टाइमिंग की तो प्रॉब्लम है। आज वो अपने साथ या सब लोग अपन सब एक ही नाव में हिलोरा खा रहे हैं, हमें सब अपन को टाइमिंग की प्रॉब्लम है। टाइम सही होता तो अपन वहां होते, टाइम गलत हो गया तभी तो यहाँ आए अपन। तो ये बात है यहाँ में आई बात ख्याल में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नाम सेवा करता है, તમે ગુજરાતી વાત કરો, मैं गुजराती को नहीं भाव याद સ્વરૂપ સેવા કરવી છે, નામ સેવા તો કરે છે, नाम स्मरण અને એમને સ્વરૂપ ठीक है સ્વરૂપ સેવા કરવી છે તો એના માટે આજ્ઞા લેવી પડે। सेवा करते गुरु आज्ञा, भगवत सेवा गुरु की आज्ञा के बिना नहीं हो, वो गुरु आज्ञा ही लेनी अनिवार्य है भगवत सेवा करनी हो तो। ये अपने यहाँ की मर्यादा है, मार्ग की मर्यादा है। જે પ્રશ્ન એ છે કે મેં મારા ઘરથી એ સાંભળેલું છે કે ગોકુલ મથુરાને એ બધું પુષ્ટિ માર્ગમાં ગણે છે, જબકે દ્વારકા રણછોડરાયજી એ બધું મર્યાદા માર્ગમાં, પણ કૃષ્ણ ભગવાન તો એક જ છે, તો એના બે અલગ અલગ કેમ? પછી वो बेटा कभी फिर कोई अलग विषय होगा तो मैं समझाऊंगा। मैं बेसिकली वो बात सही है, ठाकुर जी तो कोई भी रोल प्ले कर सके। ठाकुर जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान से प्रभु सब कुछ कर सके करके प्रभु चाहे तो पुष्टि स्वरूप में भी विराज सके और मर्यादा स्वरूप में भी विराज सके। ऐसी कोई वो थोड़ा मैं जब थोड़ा आगे समय होगा ना तब मैं यह चीज को समझाऊंगा कि वो कैसे है।
क्यों द्वारकाधीश आदि जो मंदिर हैं अपने यहाँ मर्यादा मार्गीय है मंदिर हैं, और क्यों कुछ मंदिर पुष्टि मार्गीय सेटअप के मंदिर हैं। तो मैं कभी ऐसा जो विषय चलेगा तो वो मैं तुमको सविस्तार तुमको समझाऊंगा कि भाई क्या है। हाँ, पर वो जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेरी अवस्था में द्वारकाधीश के मंदिर में या कोई जैसे फॉर एग्जांपल मर्यादा मार्गी जो मैंने कही, वो मर्यादा मार्गीय मंदिर में जाने में कोई गलत बात नहीं है। एक बात समझो, तेरी अवस्था में कृष्ण के जो शास्त्रोक्त प्राचीन देवालय हैं भगवान के, उनमें जाने में कहीं कोई अपराध, कहीं अपराध क्या, कहीं कोई हरकत नहीं। ये बात बिल्कुल श्योर। उन पर मैंने क्या कही, वो ध्यान क्या लेना है कि वो प्राचीन शास्त्रोक्त जो है वो देवालय होने चाहिए। जैसे ये अपने ये श्यामला जी है या द्वारकाधीश है या दक्षिण के जो भी मंदिर हैं तिरुपति इत्यादि, बालाजी इत्यादि, ये सब, या ये श्रीरंगपट्टनम में है या फिर विठलनाथ पांडुरंग वहां पे पंढरपुर में है, ऐसे जो प्राचीन देवालय हैं जहां पे, या जगन्नाथ जी है, जहां हजारन वर्ष सतत अखंड पूजा को प्रवाह चलते हुए, ऐसे देवालय में कहीं पे भी जाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। तेरी अवस्था में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न कब उपस्थित हो रहे हैं, कौन के लिए उपस्थित हो रहे हैं? जाको बीज भाव अत्यंत दृढ़ हो गयो है। बीज भाव એટલે બેસિક બીજ ભાવ એટલે જે આપણું બેસિક નેચર હોય, બેસિક નેચર। कोई स्वभाव थी बहु कोई स्वभाव से बहुत गुस्सा हो, कोई को जैसे तू तेरे फ्रेंड्स में जब तू बैठे को तो हर एक के अपने अपने नेचर हो ना। तेरे 4-5 दोस्त हैं, 4-5 दोस्त में से हर एक को अपना अपना स्वभाव है। तेरे काम करने के कुछ अलग तरीका है, तेरे फ्रेंड के काम करने के कुछ अलग तरीका है। कोई जो है वो मृदु स्वभाव वाला है, बहुत इजी गोइंग है, तो कोई बहुत गुस्सा वाला है, तो कोई बहुत मजाकिया है। ऐसे कई हर एक के अपने अपने इनहेरेंट बेसिक स्वभाव है। ठीक है, वो बेसिक स्वभाव तू अब जैसे आगे और गंभीर और बड़ो होगा तो तेरे ये सब चीजें ख्याल में आएंगी। वो एक स्वभाव मनुष्य को वाकई जीवन पर्यंत वो हमेशा रहे। अगर कोई को लगे अपन को मालूम पड़ जाएगा या के अंदर बहुत तामस है या के अंदर बहुत गुस्सा है तो वो हमेशा आगे भी जीवन में वाकई अंदर ऐसे ये तनाव के या गुस्सा होने के जो क्षण है वो कई बार वाकई जीवन में दिखाई देंगे। वो इजी गोइंग है, हर जगह एडजस्ट हो जाए, अडेप्ट कर ले अपने आप को, ऐसे सोटू से वही को कहें अपने आप बीज भाव। अपनी जो एटीट्यूड है वो, अपना जो स्वभाव है वो, स्वभाव कहो के बीज भाव कहो के स्थायी भाव को, सब एक ही है। तो इन दी लॉन्ग रन जाकर के, लंबे समय के बाद जाकर के जाको एक फोकस हो जाए कि मैं यही जगह यही ठिकाने पे मेरा जो कुछ भी है सब कुछ वो एक या जगह पे है। फिर वाकई लिए और सब दूसरी जगह हर मंदिर पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई को होने लगे और बहुत सारी सेवा करने के बाद बापू ये लगे मेरे घर में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं मेरे माथे, घर में जब शुरू करा मेरी प्रेम, मेरी श्रद्धा, मेरी आसक्ति सब कुछ या यही स्वरूप में, फिर बापू कोई भी जगह जाने की जरूरत नहीं लगे। बापू सके लगे मेरा सब कुछ जो है वो यहीं आ गए। तो वैसे कोई हरकत नहीं है जाने में। इन द बिगिनिंग अपन इन जगह में जा सकते, वहां में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, और कुछ यासु रिलेटेड कुछ प्रश्न? जी મારા ઘરમાં સેવા છે તો હું દૂધઘર ની છે તો દૂધઘર કરી શકું? हाँ कर सकते। દૂધઘરની સામગ્રી કરી तो मैंने उनको जवाब दिया तो वहां में मैंने समझाया हो ये तो कि मैं जहां प्रकार पूर्ण प्रकार चलते हुए वहां पे मैं कहूं कि भाई मर्यादा रखो, क्योंकि वो प्रकार की जो गरिमा है वह गरिमा को संभालो। और जहां नहीं कर पा रहे हैं तो वहां में सभी लोग ज्वाइन हो सके, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। इतना ही है कि जो भी भगवत सेवा, जो भी साधना प्रणाली कर रहे हैं, खान पान अपने शुद्ध होने चाहिए। और जब भी अपन करने जाए तो अपनी परिस्थिति जो है वो हाथ पांव धो करके अपन जो है वो नाम स्मरण में बैठना चाहिए। तो ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि अपन रात दिन डील कर भी चुके हैं और थोड़ा अपने घर से साहित्य बहुत प्रकाशित हो गया है
थोड़ा गंभीरता से वो सब पढ़ोगे तो अपने आप में ये सारी चीजें कही गई। જે મારી ઘરે પણ બીજું એવું સાંભળ્યું છે, જેમ કે મંદિરમાં છેલ્લે આરતી થાય કૃષ્ણ ભગવાનની, તો એ ટાઈમે પછી આમ આરતી ના લેવી જોઈએ. કેમ? એટલે લોકો દૂરથી આમ આમ કહીને આમ કરે છે, પણ એવું કહે કે આરતી ના લેવી જોઈએ. એ આપણા તેનું પ્રકાર નથી, એ આપણા તેનું પ્રકાર નથી. દરેક સંપ્રદાયના કાંઈક નિયમ હોય છે અને જે કરવાની, જે પૂજા પાઠ કરવાની શૈલી છે દરેકની જુદી જુદી હોય છે. એ ભગવાને એવી રચના અલગ અલગ પ્રકારની કરેલી છે. દાખલા તરીકે તિલક આપણે કરીએ છીએ, આપણા સંપ્રદાયનું તિલક કાંઈક જુદું છે, બીજા સંપ્રદાયનું તિલક કાંઈક જુદું હોય છે. જે શ્રી શિવ ભક્ત હોય, જે શ્રી શિવજીને માનનારા હોય, એ લોકો બીજા જાતનું તિલક કરે છે. આપણે કૃષ્ણને માનીએ છીએ તેથી આપણે જુદા ટાઈપનું તિલક કરીએ છીએ. આપણે કંઠી પહેરીએ છીએ, એ લોકો બીજું રુદ્રાક્ષ કે એવું કંઈક ધારણ કરે છે. એટલે દરેક સંપ્રદાયના કાંઈક નિયમ હોય છે અને એ ફોલો કરવા જ પડે. એટલે એમાં આપણા ત્યાં એવું નથી, આરતી લેવાનો કોઈ ક્રમ આપણા ત્યાં બતાવેલું નથી. દેટ્સ વાય આપણે નથી કરતા. પણ એ જનરલી આપણે સમાજમાં કે મંદિરોમાં કે ટીવીમાં કે પિક્ચર હોય એમાં બધું આ ટાઈપનું જોઈએ છે. એટલે એમાં આપણને એવું આપણને એવું लगे कि हाँ भाई ये अपन के यहाँ पे भी करना है, हमें क्या है. पर ऐसा नहीं है. हर एक संप्रदाय के कुछ कुछ नियम है जो नियम अपन को फॉलो करने चाहिए.